Hello, it's a lovely good evening from here in Chile, and hope as always that each one of you are absolutely fine. So now in this particular session we have decided to pick up now a very formidable, foremost and very significant topic, that is, as you have already understood, right, you are, so accounting for financial instrument. This is the topic which we are supposed to start in this particular chapter. But before we discuss something else, let me actually just caution you that in order to comprehend this particular topic, since now it is quite vast, and as you know it is covered by 3 Ind AS 107, 109 and 32, correct? So we expect that the student has what we call knowledge with respect to the financial management topics, because so often we are going to actually use it. And my sincere advice is that in case if some of you feel that you are not quite well familiar with, or you have forgotten a bit, so you must revise at least what options are, put options, warrants. So all these things will come into play in this particular not only session but in the entire what we call discourse on the financial instruments. As I said, 3 standards concurrently we are going to take up, that is 107, 109 and 32, but so intermingled these 3 standards are that it is very difficult to take them separately. So moreover, you have chapter only accounting for financial instruments. So we shall take up financial instrument and we will discuss the aspect of the 3 Ind AS wheresoever actually they will have an impact, correct? So it's a pretty vast chapter, no doubt about that now, especially as per the new guidelines and new syllabi. So it becomes all the more, little bit more motivating factor for you to actually give some extra attention towards this particular topic. No doubt you are going to have questions in the examinations from this particular chapter or this particular unit, you may say. So pretty strong. So let's go and now talk about the issues which we are going to actually face in this particular topic. So here we go. तो बड़े जैसा कि मैंने कहा, अब हम स्टार्ट करेंगे, करेक्ट, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और फॉर्मेडेबल टॉपिक है और थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा. अकाउंटिंग फॉर financial instruments. Accounting for financial instruments. जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने ये भी कहा कि अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है ये कवर्ड है एक्चुअली 3 इंड एस से. टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कवर्ड, जैसे कि मैंने कहा, कवर्ड अंडर एक तो है इंड एस 109, और इंड एस 109 जो है बेटे उसका ताल्लुक जो है रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट से है. यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो रिकग्नाइजेशन है और मेजरमेंट है वो इंड एस 109 से कवर्ड है, रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट. उसके अलावा फिर है आपका इंड एस 32. इंड एस 32, इंड एस 32 जो है उसका जो ताल्लुक है बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से है. प्रेजेंटेशन, हालांकि हम लिखते तो प्रेजेंटेशन से है, लेकिन इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इट ऑल्सो डील्स विद डिस्टिंग्विशिंग डेब्ट्स फ्रॉम द इक्विटी. हम देखेंगे कि डेब्ट्स को किस तरह से अलग करा जाता है इक्विटी से, वो भी इसके तहत आएगा. एंड इंड एस 107 जो है
उसका जो ताल्लुक है वो डिस्क्लोजर से है, यानी कि इससे हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इंड AS 109 और 32 से है। करेक्ट। 109, 32 और 107 ये तीन स्टैंडर्ड जो हैं इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे। आइए जी, तो इसका मतलब अब हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? चलो हम इसी तरह से लिख देते हैं, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जन्म देता है एक फाइनेंशियल एसेट को एक पार्टी के लिए, और दूसरी पार्टी के लिए वो चीज फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। जैसे कि सपोज मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे। अब मैंने अगर किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे तो इसका मतलब उस कंपनी में और मेरे में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिकॉज मैंने डिवेंचर खरीदे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, तो मेरे लिए तो ये फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन जिस कंपनी ने ये इश्यू करे हैं उसके लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, बट एट द सेम टाइम इट डिलीवर्स, एज आई सेड, व्हाट वी कॉल इट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द अदर पार्टी। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब बार बार ये टर्म आएगी तो मैं FI यूज करूंगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, that gives rise to a financial asset, इस यूनिट में आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार अब ये वर्ड आएंगे फाइनेंशियल एसेट, तो हम बार बार इतने बड़े वर्ड नहीं लिख सकते। अब मैं लिखूंगा FA, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियल एसेट है, ना कि फिक्स्ड एसेट। करेक्ट। ऑफ वन एंटिटी and a financial liability, मैंने ऑब्लिक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी लिख दिया। जरूरी नहीं है कि दूसरी वाली पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकती है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए हम आगे से FL यूज कर लेंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्योंकि कम बारी आएगा इसलिए हमने EI नहीं लिखा। तो ऑफ एन अदर एंटिटी, तो पहले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत दो चीजें होंगी, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। वैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, दो में से कोई एक चीज होगी। एक तो फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरी फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। याद रखें कि यहां पर मैंने एक टर्म लिखी है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का भी मीनिंग क्लियर कर ही लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट and contractual refer to an agreement between two or more parties, 2 or more parties
which is usually enforceable by law and that has clear economic consequences. Clear economic consequences. That the parties have little डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन का मतलब वैसे होता है चॉइस, डिसीजन. लिटिल डिस्क्रिशन टू अवॉइड. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल जो हम यूज करेंगे इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा और पार्टीज जो है बैक ट्रैक नहीं कर सकती हैं. समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में ही हो. मैंने जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको लिखाया तो जस्ट मैं थोड़ा क्लियर कर दूं. कई बार मैंने देखा बच्चे कई बार ना जब बाद में रीडिंग करते हैं तो भूल जाते हैं. जैसे कि मिस्टर एफ परचेस्ड डिवेंचर्स of TQM लिमिटेड. तो जैसा कि मैंने बोला इस केस में एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनेंशियल एसेट है और एंटिटी TQM के लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं आपसे ये कहूं एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मिस्टर जी एक्वायर्ड $1,000 shares, equity shares of TQM लिमिटेड. तो मिस्टर जी के एंगल से तो ये फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि हमने तो ये इन्वेस्टमेंट करी है. अब मुझे ये बताओ कि TQM के एंगल से ये क्या है? TQM के एंगल से फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, EI. बात समझ में आ गई? तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए. अब उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल एसेट को जरा समझने की कोशिश करते हैं. फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एसेट बेटे जो स्टैंडर्ड है ना फाइनेंशियल एसेट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है. ए फाइनेंशियल एसेट, अ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट that is a कैश. यानी कि फाइनेंशियल एसेट के अंदर एक तो कैश आएगा,
अब बेटे कैश को फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि जो करेंसी कैश होता है, करेंसी कैश is a financial instrument as it is a medium of exchange. It is a medium of exchange of transactions and is therefore the basis on which all transactions are measured and recognized. Recognized in the financial statement. इसलिए इसको फाइनेंशियल एसेट माना गया है. और डिपॉजिट ऑफ कैश विथ अ बैंक or similar financial institution is a financial asset as it represents contractual right of the depositor to obtain कैश फ्रॉम द बैंक. तो मेरा ये राइट है, तो मैं बैंक से अपना कैश कभी भी निकाल सकता हूं और बैंक को ये देना पड़ेगा. तो इसलिए डिपॉजिट ऑफ कैश जो है वो फाइनेंशियल एसेट है. फाइनेंशियल एसेट के अंदर बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर एंटिटी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, जब हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर एंटिटी. जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है. सी एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट
to receive cash or another financial asset from another entity तो फाइनेंशियल एसेट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी शामिल होते हैं। अधिकार, आपके पास अधिकार है कि आप कैश ले सकते हैं या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। अगर आपने किसी को लोन्स एंड एडवांस दिया है तो आपके पास लीगल राइट है उसके अगेंस्ट कैश लेने का। अब आप चाहो तो उससे कैश भी ले सकते हो या उससे दूसरा कोई फाइनेंशियल एसेट भी ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये इसका मतलब है। तो तीसरा पॉइंट है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। डी, फाइनेंशियल एसेट में कैश के अलावा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। एक्चुअली ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है लेकिन मैंने इसको अलग लिखा। एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज, a contractual right to exchange financial asset or financial liability with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को किसी दूसरी एंटिटी से। आपके पास ये अधिकार है लेकिन ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पर जो आपके फेवर में होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको क्या एक एग्जांपल दूंगा तभी आपकी समझ में आएगा। F4 Limited holds a call option। मैंने कहा था शुरू में थोड़ा सा आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवाइज करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन टू परचेज इक्विटी शेयर्स in listed company G77 Limited for ₹50 per share at the end of 60 days period
and if value of share on exercise day is rupees 50, is more than rupees 50, is more than rupees 50, then it is potentially favorable. तो तब ये मेरे लिए potentially favorable है, call option, isn't it? Then it is potentially favorable. अब आप बोलोगे सर आपने एक्सचेंज क्या करा? अरे भाई तुम्हारे पास शेयर आ गए और एक्सचेंज तुम्हारा कैश बाहर चला गया, तो फाइनेंशियल एसेट आपका बाहर चला गया, एक और फाइनेंशियल एसेट आ गया। तो इस केस में ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो है आपका फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? E, a contract that will or may be settled in the entities own equity shares, own equity shares नहीं लिखना चाहिए, own equity instruments, own equity instruments, EI, and is a non-derivative, is a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of the entities own equity instruments इस पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल, अब क्या लिखें? चलो, सेल ऑफ a plot
by Infosys Limited for rupees 100 crores and the buyer is to pay rupees 100 crores worth of shares of Infosys. मैं एक कंपनी हूं, करेक्ट। अब पहले तो ये पढ़े, ए नॉन डेरिवेटिव फॉर विच द एंटिटी इज और मे नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू रिसीव ए वेरिएबल नंबर ऑफ द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचा और उसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा पेमेंट जो करेंगे मेरे ही शेयर्स में करेंगे, मेरे ही शेयर्स में करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आई? बायर ने कहा कि मैं आप ही के शेयर में आपको पेमेंट कर दूंगा। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट एंटिटी यहां पर ऑब्लाइज नहीं थी, हमारी एंटिटी के ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था कि हमने इन शेयर्स को एक्सेप्ट करना है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये जो पॉइंट है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन कॉन्टेस्ट में ये पॉइंट, इसको क्या कहें, इंडियन कॉन्टेस्ट में ये पॉइंट टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कंपनी अपने ही शेयर इससे एक्सेप्ट कर लेगी तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि इट विल लीड टू ए बायबैक। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता टेक्निकली, लेकिन अब दिया हुआ है तो हम इसको समझाने के लिए इस तरीके से कहना पड़ेगा। हालांकि मैंने कहा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव है ना, एक अलग सेगमेंट में हम इसकी डीपली चर्चा करेंगे। तो a contract that will or may not be settled in entity's own equity instrument and is a non-derivative, ये derivative नहीं है, for which entity is or may be obliged to, obliged to receive a variable number of the entity's own shares। तो इस केस में एंटिटी ऑब्लाइज्ड हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। अगर एंटिटी ने खुद कहा होता नहीं हमें पेमेंट इसी में दो, तब तो हम कहेंगे एंटिटी वाज अंडर ऑब्लिगेशन। तो ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड इज, एक तो हमने लिखा पॉइंट ए और अब मैंने लिखा पॉइंट बी, ए डेरिवेटिव। ए डेरिवेटिव that will or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or another financial asset for fixed number of the entity's own equity instruments, EI, equity instruments
For this purpose, the entities own equity instruments do not include instruments that are themselves contracts for the future receipt or delivery of the entities own instruments. जैसे कि एग्जाम्पल से F5 Limited entered into a future contract. याद आया आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट to purchase own shares. A derivative that will or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or another fixed asset for a fixed number of entities own equity instrument. एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी सेटलमेंट जो होगी कंपनी के शेयर्स में हो सकती है. जैसे कि F लिमिटेड ने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा कि भी मैं इतने शेयर खरीदूंगा. F5 लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज ओन शेयर्स. तो ये क्या है? यहां हमें कोई कैश नहीं मिल रहा, या हमें कोई दूसरा एसेट नहीं मिल रहा, यहां हमें अपनी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं. तो इस तरह का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में आएगा. यहां तक तुम्हें पहले तो चीज क्लियर होनी चाहिए. हालांकि ये वाला पॉइंट घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर ई, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट मैंने कहा डेरिवेटिव का है, उसमें बाद में ये और भी आएगा. हालांकि पहले 4 पॉइंट तक आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अभी आपसे मुलाकात करते हैं और उसमें हम कुछ और इश्यूज की बातचीत करेंगे.